Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 8 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. Let's start chapter number 4, MS Access, Query, Form and Report. So in the previous chapter we have learned about the introduction of MS Access, but here in this chapter we will learn about query, form and reports. Let's move on to the introduction. So in MS Access, query, forms and reports are powerful tools. MS Access में ये जो तीनों है ये काफी ज्यादा powerful tools हैं that serve different purposes in database management, जिनका अलग अलग काम होता है database management में. Let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, you will be able to know, you will understand the importance of query, forms and reports in database. क्या जरूरत है इसकी इन तीनों की database में, and you will also learn how to create query, forms and reports. और आप ये भी सीख लेंगे कि कैसे इसे जो है हमें बनाना है, कैसे हमें इसे create करना है. So let's move on to the conversation between Meera and Hina. So Meera says that, hey Hina, have you ever heard about queries, forms and reports? क्या तुमने कभी भी queries, forms और reports के बारे में सुना है? In the context of databases, database के context में? So Hina replies that yeah, I have heard those terms before. हाँ, ये जो terms है इनके बारे में मैंने पहले भी सुन रखा है. But I am not entirely sure what they mean. लेकिन मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि इनका क्या मतलब है. Can you explain? क्या तुम मुझे explain कर सकती हो? Meera replies, of course. There are essential components in database management. Database management में बहुत सारे components होते हैं. Queries are like questions you ask the database to retrieve specific information. Queries क्या हैं? ये एक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो हम पूछते हैं रिट्रीव करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को. दे हेल्प यू फिल्टर एंड सॉर्ट डेटा बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया. ये हमें जो है डेटा को सॉर्ट करने में हेल्प करते हैं. किस हमारा जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट और फिल्टर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. Forms are like user-friendly interfaces that allow you to input and view data in a structured way. और ये जो forms है ये एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है जो हमें हेल्प करता है डेटा को इनपुट करने में, व्यू करने में एक स्ट्रक्चर्ड वे में, मींस एक सही तरीके से. एंड फाइनली रिपोर्ट्स आर लाइक ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा. और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करना, मींस दीज आर ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा. नाउ मीरा अगेन सेज टू हिना, आई होप यू गॉट इट. मुझे लगता है कि तुम्हें ये जो बातें मैंने बताई हैं ये सारी समझ में आई होगी. Queries, forms and reports together make managing and using databases more efficient and user friendly. ये तीनों जो है मिल के डेटाबेस को और भी ज्यादा एफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं. Now Hina replied, thanks for explaining. It's much clearer now. So ये मुझे समझाने के लिए थैंक यू, और अब मुझे जो है काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है. Now queries in MS Access are used retrieved specific data from one or more tables in the database. So queries क्या है? Queries MS Access की अगर हम बात करें तो इन्हें यूज किया जाता है रिट्रीव करने के लिए स्पेसिफिक डेटा को एक या फिर ज्यादा टेबल में से किसी भी डेटाबेस में से. They allow us to filter and sort records based on certain specifications. ये हमें जो है डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करने में भी हेल्प करते हैं, जो भी हम चीजें यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग. Forms provide a user-friendly way to input and edit data. ये जो फॉर्म्स है ये हमें हेल्प करते हैं प्रोवाइड करने में एक यूजर फ्रेंडली तरीका जिसकी मदद से हम इनपुट और एडिट कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस में. And they are specially useful when we want to ensure data accuracy and consistency. और ये तब ज्यादा यूजफुल है जब हमें डेटा एक्यूरेसी चाहिए या फिर कंसिस्टेंसी चाहिए.
Now, reports are used to present data in a structured and visually appealing format. ये जो रिपोर्ट्स हैं इन्हें हम यूज करते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और विजुअली अपीलिंग फॉर्मेट में. दे आर आइडियल फॉर क्रिएटिंग प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स. ये जो है काफी ज्यादा जरूरी है क्रिएट करने के लिए प्रिंटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को. which will summarize and communicate data effectively. जो क्या करता है डेटा को समराइज करता है, कम्युनिकेट करता है बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली. Now let's move on to the next topic, which is query. So a query is a way to create a list of entries. Query क्या है? ये एक तरीका है जिससे हम जो है काफी सारी एंट्रीज को क्रिएट कर सकते हैं that meet a set of criteria, जो कि दिए गए क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है. क्वेरी सर्व एज एन एडवांस सर्च इंजन. ये जो है एक एडवांस सर्च इंजन की तरह काम करते हैं, जो क्या करता है? सर्च करता है एंट्रीज को, ग्रुप्स को, एंड ग्रुप ऑफ एंट्रीज एंड क्रिएट अ लिस्ट, और एक लिस्ट भी बनाता है. We use a query to view. हम क्वेरी को क्यों यूज करते हैं? व्यू करने के लिए, चेंज करने के लिए और एनालाइज करने के लिए डेटा को टेबल के अलग अलग तरीके से. They are used to retrieve the information from a table or group of tables. इसे यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए. कहां से? टेबल से या फिर ग्रुप ऑफ टेबल से. अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक क्राइटेरियन, दिए गए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग. The results displayed by the query are also the part of records. जो भी यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले किए जाते हैं वो सारे जो है हमारे रिकॉर्ड का पार्ट होते हैं. फ्रॉम फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. कहां से? फॉर्म से और रिपोर्ट से. Suppose we have a database table of employee detail and we want to view the details of the employees whose basic salary is between 25,000 and 30,000. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें जो एम्प्लॉय है उसकी डिटेल चाहिए. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या डिटेल देख रहे हैं कि किन एम्प्लॉयज की सैलरी जो है 25,000 से 30,000 के बीच में है. तो ये डेटा हमें निकालना है. सो इन दिस केस वी कैन क्रिएट अ क्वेरी. इस केस में हम एक क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं. The query window is divided into two parts. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है डिजाइन एरिया और दूसरा है डिजाइन ग्रिड. सो डिजाइन एरिया क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमें टेबल्स, फील्ड्स और सब क्वेरीज. तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें मिलती हैं that we may want to use in the query, जिसे हमें अपने क्वेरी में यूज करना हो. फिर बारी आती है डिजाइन ग्रिड की. So it is the below pane that contains the columns. ये एक below pane है जिसमें आपको columns मिलेंगे. In which the user can set up the fields. जिसमें जो user है वो fields को set कर सकता है. Now let us now understand how a query is generated. So चलिए समझते हैं कैसे query generate होती है. Let's move on to the topic creating a query. So design view can be used manually to create a selected query. So ये जो डिजाइन व्यू है इसे हम यूज कर सकते हैं मैनुअली क्रिएट करने के लिए. कोई भी दिया गया है जो क्वेरी है उसको. When we use design view, जब हम इसे यूज करते हैं we have more control over the details of the query design. हमारे पास ज्यादा कंट्रोल होता है किसके? जो भी डिटेल्स होते हैं क्वेरी की डिजाइन के. Now to begin creating a query, follow the given steps. अगर हमें जो है क्वेरी को बनाना है, क्रिएट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा. So first we have to go to create tab. create tab में जाना है. ये है हमारा create tab. Now क्लिक करना है हमें क्वेरी डिजाइन को. ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है जो कि हमें शो टेबल डायलॉग बॉक्स में मिलेगा. So यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरी डिजाइन है, उस पे क्लिक करना है. Now click on the table to use in the query. अब जो भी टेबल हमें चाहिए उस पे हमें क्लिक करना है ताकि हम उसे यूज कर सकते हैं अपने क्वेरी में. Now we have to click on add button. add button पे क्लिक करना है ताकि हम ऐड कर सके टेबल अपने क्वेरी में. A box will appear in the select query window. select query window में आपको जो है एक बॉक्स मिलेगा.
डिस्प्लेइंग द फील्ड्स फॉर द टेबल यू सिलेक्टेड, वहां पे जो है अलग अलग फील्ड्स मिलेंगे जो भी हमने सेलेक्ट किया है अपने टेबल से रिलेटेड। नाउ आगे क्या करना है हमें, स्टेप 3 और 3 से लेके 5 तक जो है रिपीट करना है हर एक टेबल के लिए जो भी हम अपनी क्वेरी में इंसर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द क्लोज बटन पे क्लिक करना है ताकि हम हाइड कर सके शो टेबल डायलॉग बॉक्स को। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स जिसकी वजह से हम क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। सो इफ यू ऐड अ टेबल एक्सीडेंटली टू द क्वेरी, अगर हमने कोई टेबल जो है एक्सीडेंटली किसी क्वेरी में ऐड कर दिया है एंड वांट टू डिलीट इट, और उसे डिलीट करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द टेबल एंड देन प्रेस ऑन द डिलीट की। उस टेबल पे पहले क्लिक करें और फिर डिलीट की को प्रेस करें। Now next step is double click with the left mouse button. जो लेफ्ट माउस बटन है उसे डबल क्लिक करें ऑन द फील्ड टू इंक्लूड इन द क्वेरी। जो भी फील्ड हमें चाहिए उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं अपने क्वेरी में। सो आप देख सकते हैं दिस इज आवर डिजाइन एरिया एंड दिस इज आवर डिजाइन ग्रिड। नेक्स्ट स्टेप, repeat step 8 for each field to include in the query. So query में इंक्लूड करने के लिए हमें बार बार जो है स्टेप 8 को रिपीट करते रहना है और ऐसे हमारा क्वेरी क्रिएट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रनिंग अ क्वेरी। क्वेरी को हम कैसे रन कर सकते हैं। सो वंस वी क्रिएट अ क्वेरी वी हैव टू रन इट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अब एक बार हमने क्वेरी को क्रिएट कर लिया तो अब हमें क्या करना है, उसे रन करना है ताकि हमें जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल पाए। वी शुड क्लिक ऑन द रन बटन इन द डेटाबेस टूल बार। हमें क्या करना है, हमें रन बटन पे क्लिक करना है डेटाबेस टूल बार में टू अचीव द आउटपुट, आउटपुट को अचीव करने के लिए। द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मेक्स अप द आंसर विल बी डिस्प्लेड इन डेटा शीट व्यू। सो यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनका पूरा एक सेट जो है हमें जो है दिखाई देगा कहाँ पे, डेटा शीट व्यू में। Though it might look like a table stored in our disk, भले ये एक टेबल की तरह दिखाई दे जो हमारे डिस्क में स्टोर है, it is not actually so, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। The data stored in the existing table is used to construct these records. जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर किया गया है इस टेबल में उसे यूज किया जा रहा है रिकॉर्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। If we were to change the data in the employee detail tab, अगर हमें डेटा को चेंज करना हो एम्प्लॉय डिटेल टैब में एंड देन रिटर्न द सेम क्वेरी, और फिर हमें जो सेम क्वेरी उसे रिटर्न करना है, द रिजल्ट्स वुड आल्सो रिफ्लेक्ट द चेंजेस। ये जो रिजल्ट है ये चेंजेस में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। ना टू रन अ क्वेरी फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब कैसे रन करना है क्वेरी को, ये स्टेप्स चलिए फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें रन ऑप्शन को क्लिक करना है जो कि हमें रिजल्ट्स ग्रुप में मिलेगा डिजाइन टैब के, ताकि हम अपनी क्वेरी को रन कर सके। नाउ इन द डेटा शीट व्यू द नेम्स ऑफ द फील्ड इंक्लूडेड इन द क्वेरी विल बी शोन। डेटा शीट व्यू में जो भी नेम है हमारे फील्ड का वो सब कुछ जो है यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। सो आप देख सकते हैं ये है रिजल्ट हमारे सामने। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे हाउ टू सेव अ क्वेरी, मींस सेविंग अ क्वेरी। सो टू सेव अ क्वेरी फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आपको सेव करना है क्वेरी को तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा, पहले हमें प्रेस करना है Ctrl+S कीबोर्ड में से। अब जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। फिर अब हमें क्या करना है, हमारा जो भी क्वेरी का नाम है वो यहाँ पे टाइप करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, जो क्वेरी है वो सेव हो जाएगी। आफ्टर व्यूइंग द रिजल्ट्स ऑफ द क्वेरी, जब हमने रिजल्ट देख लिया क्वेरी का तो हमें जो है क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा ताकि हम वो जो क्वेरी है उसको क्लोज कर सकें और अपने डेटाबेस विंडो में वापस आ सके। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। सपोज वी हैव अ डेटाबेस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। मान लेते कि हमारे पास एक डेटाबेस है लाइब्रेरी बुक्स का। यू हैव टू डिजाइन a query that finds all books published in the last 2 years and written by a specific author. तो आपको क्या करना है, आपको जो है ढूंढना है कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो लास्ट 2 years में जो है पब्लिश हुई थी और एक ही ऑथर ने उसे लिखी थी।
सो ये जो है आपको यहाँ पे निकालना है. दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉर्म्स. सो फॉर्म इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट. फॉर्म क्या है? एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है which is used to create a user friendly interface, जो कि यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एंटरिंग, व्यूइंग एंड एडिटिंग डेटा इन अ डेटाबेस, जिसकी मदद से हम एंटर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस टेबल में या फिर क्वेरी में. फॉर्म्स अलाउ यूजर्स टू कनेक्ट विद द डेटाबेस. ये जो फॉर्म्स है ये हेल्प करते हैं यूजर को कनेक्ट करने में डेटाबेस के साथ by providing a structured and visually appealing way, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड और विजुअली अपीलिंग तरीका टू इनपुट एंड गेट द इंफॉर्मेशन, जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को इनपुट भी कर सकते हैं और पा भी सकते हैं. नाउ इन एक्सेस a form can be viewed in the three ways. एक्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्म है उसे तीन तरीके से हम व्यू कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं पहला है यहाँ पे फॉर्म व्यू, फिर है डिजाइन व्यू और फिर है लेआउट व्यू. ये तीन तरीके हैं. फॉर्म व्यू में हम क्या कर सकते हैं? टू इंसर्ट, एडिट एंड व्यू द डेटा. हम ये सारी चीजें कर सकते हैं. डिजाइन व्यू जो है डिजाइन करने के लिए होता है फॉर्म को. लेआउट व्यू में हम चेंज कर सकते हैं साइज और अपीयरेंस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है फॉर्म में उसका. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिएटिंग अ फॉर्म. कैसे हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं? So to create a form, you have to follow the given steps. First, we have to select the table from the navigation pane. Navigation pane में से जाके पहले हमें जो है टेबल उसे सेलेक्ट करनी है. अब हमें जो क्लिक करना है क्रिएट टैब पे और क्लिक करना है फॉर्म पे, फॉर्म्स ग्रुप में जाके. नेक्स्ट, अ न्यू फॉर्म इज क्रिएटेड. एक नया फॉर्म क्रिएट हो जाएगा. टू एडिट और एंटर डेटा इन अ फॉर्म. अगर हमें डेटा को एंटर करना है या फिर एडिट करना है फॉर्म को तो हमें क्लिक करना है होम टैब पे और फिर करना है क्लिक फॉर्म व्यू पे. वी कैन सी द डिफरेंट रिकॉर्ड्स इन आवर टेबल. हम जो है अलग अलग रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं टेबल में बाय यूजिंग द रिकॉर्ड नेविगेशन बार. रिकॉर्ड नेविगेशन बार को यूज करके टू मूव बिटवीन द रिकॉर्ड्स एज रिक्वायर्ड. रिकॉर्ड्स के बीच में मूव करने के लिए जैसे हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मूव कर सकते हैं. नाउ लेट्स लर्न हाउ to save a form. So saving a form is our next topic. So we have to follow the given steps to save a form. ये जो फॉर्म है इसे सेव करने के लिए जो स्टेप्स इन्हें फॉलो करना है. पहले हमें जाना है, क्लिक करना है सेव बटन पे. कहाँ पे मिलेगा? ये हमें मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार पे. एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन. ओके बटन पे क्लिक कर देना है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट रिपोर्ट. So a report is used to organize and summarize the data for online viewing. ये जो रिपोर्ट है इसे यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, समराइज करने के लिए डेटा को ऑनलाइन व्यूइंग के लिए या फिर प्रिंटिंग के लिए. Reports can be created at any time and they are prepared using the current update data in the database. So ये जो रिपोर्ट्स है ये कभी भी बनाए जा सकते हैं. इन्हें जो है तैयार किया जाता है अपडेट, जो करंट अपडेटेड डेटा है उसकी मदद से डेटाबेस में. एंड रिपोर्ट्स एनेबल द यूजर टू एनालाइज द रिजल्ट इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट. ये जो रिपोर्ट है ये हेल्प करता है यूजर को एनालाइज करने में रिजल्ट को एक प्रिंटेड फॉर्मेट में. नाउ क्रिएटिंग सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट ऑप्शन. अब रिपोर्ट ऑप्शन की मदद से हम कैसे सिंपल रिपोर्ट को हम बना सकते हैं? सो वी कैन यूज रिपोर्ट टूल टू क्रिएट अ सिंपल रिपोर्ट. रिपोर्ट टूल को हम यूज कर सकते हैं एक सिंपल रिपोर्ट बनाने के लिए. द रिपोर्ट डिस्प्लेज ऑल द फील्ड्स फ्रॉम द अंडरलाइन टेबल. अब यहाँ जो रिपोर्ट है इसमें आपको सारे फील्ड्स दिखेंगे दिए गए टेबल के. नाउ टू क्रिएट अ सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल. एक अगर हमें सिंपल रिपोर्ट जो तैयार करनी है रिपोर्ट टूल की मदद से तो ये जो स्टेप्स है इन्हें फॉलो करना होगा. पहला है हमें जो है क्लिक करना है टेबल पे या फिर क्वेरी पे जिसके ऊपर रिपोर्ट हमें तैयार करनी है फ्रॉम द नेविगेशन पेन में से. नाउ अब हमें जाना है क्रिएट टैब पे, क्लिक करना है रिपोर्ट ऑप्शन पे जो कि हमें रिपोर्ट्स ग्रुप में मिलेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एमएस एक्सेस विल क्रिएट द रिपोर्ट. अब एमएस एक्सेस क्या करेगा? रिपोर्ट को क्रिएट कर देगा और डिस्प्ले कर देगा उसे लेआउट व्यू में. वंस वी फिनिश व्यूइंग द रिपोर्ट, जब हम एक बार हमने रिपोर्ट को फिनिश कर दिया व्यू करने, so we can save it. हम उसे सेव कर सकते हैं and then close both the reports
and the underlying table. हम जो रिपोर्ट, दोनों ही रिपोर्ट्स को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, जो भी टेबल है या जो क्वेरी है उसको क्लोज कर सकते हैं. That we used as a record source, जिसे हमने यहाँ पे यूज किया था. So now let's move on to, let's summarize. So imagine we are tasked with creating a report to showcase the performance of a sports team. So मान लेते हैं कि हमें जो है काम मिला है रिपोर्ट क्रिएट करने का, जिसमें हम स्पोर्ट्स टीम की परफॉर्मेंस को बता रहे हैं ओवर अ सीजन. एक सीजन में इस टीम ने कैसे परफॉर्म किया. हाउ वुड वी डिजाइन द रिपोर्ट, हम उसे कैसे डिजाइन करेंगे. टू प्रेजेंट द डेटा इफेक्टिवली एंड मेक इट विजुअली अपीलिंग, ताकि हम डेटा को अच्छे से इफेक्टिवली बना सके और विजुअली अपीलिंग बना सके. सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू reboot. Query is used to view, change and analyze the data of a table in different ways. To create a selected query, we use design view. Run option is used to run a query. A query does not store data, but it just retrieves data that is stored in tables. A form is a database object which is used to create a user-friendly interface for entering, viewing and editing data in a database table or query. A report is used for organizing and summarizing data for online viewing and for printing. We can create simple report by using report options. So these are some of the important points that you should remember. Now let's quickly move on to book exercise, which is let's go. A exercises fill in the blanks with the help of the words given in the box. So here the first one is a query is a way of extracting information from a database. Second, a report is used to organize and summarize data. Third one, query is used to view, change and analyze the data of a table. Fourth one, design view is used to create a selected query in MS Access. Fifth option, run option is present in the results group. And the sixth one is we can create reports using reports option. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. Here the first one is reports are prepared by using the current data. Yes, true. Second, report is created for online viewing or printing. True again. Third, query design option is present in the insert tab. This one is false. Fourth, the data stored in the existing table is used for building the reports. Yes, true. Fifth one, a query stores data. This one is false. And the sixth one, there are three ways to view a form in MS Access. This one is true. So these are the answers to true or false. Now let's quickly move on to C exercise, which is tick the right answer. So let's move on to C exercise, which is tick the right answer. Here the first one is report option is present in which of the following group? Records group, reports group, home group or none of these. Correct answer is reports group. Second, which among the following is the combination that displays save as dialog box? Control C, Control S, Control D or Control A. Here the correct answer is Control S. Third one, which among the following key is used to delete a query that has been added accidentally? Delete, enter, end or F2. Correct answer is delete. Fourth one, which among the following will display the selected files? Query design, select query, both 1 and 2, none of these. So here the correct answer is both 1 and 2 means query design and select query both are needed here. Now let's move on to the next question, question number 5. Now let's move on to fifth question. Which among the following helps a user to enter data in a table? Query, view, report or form? Correct answer is form. Sixth one, this option is used to design a form. Design view, layout view, form view or none of these. So here the correct option is design view. Now let's move on to D exercise, which is match the following. So here two columns are given, A and B. We have to match them. So first, report designs a form. Form runs the query. Run option, enter and edit the data.
Design view summarizes the data. Query, change and analyze data. And form view, insert, edit and view data. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.